हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपने अभी तक लास्ट लेक्चर में देखा एफआर फिल्टर का डिज़ाइन। ओके, हमने लीनियर फेस फिल्टर का डिज़ाइन वगैरह सब स्टडी किया। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट अपना बचा है यहाँ इस थर्ड यूनिट में, फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग मेथड्स, गिब्स फेनोमेनन और simple design of FIR filter using direct and cascade method, right? तो देखो कैसा है कि हम एक एक करके आगे जाते हैं अभी। तो आज हम फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग मेथड यहाँ अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, तो फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग मेथड है क्या एक्चुअली? ओके, तो लिसन, ये मेथड में अपने को क्या करना है? ओके, ये मेथड में हम सेट ऑफ सैंपल is determined from the desired frequency response. Okay, means a set of samples is determined from the desired frequency response. ओके, लिखते भी जाओ हाँ आप। ओके, what we are going to do, a set of samples is determined from a desired frequency response. Okay, and are identified as discrete Fourier transform coefficient. Okay, so here we will identify it as a discrete Fourier transform coefficient. Okay, then the IDFT of the set of samples gives the filter coefficient. Okay, so remember here what we are doing, a set of sample are determined from the desired frequency response and are identified as desired for as a discrete Fourier transform coefficient. Okay, then we will apply here IDFT of the set of sample and it results us filter coefficients, right? This set of samples point are used in this procedure to determine by sampling a desired frequency response. Okay, तो हम यहाँ पर जो फिल्टर का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो यहाँ पर डिफाइन करते हैं एच डी ऑफ ई रेस टू जे डब्ल्यू. Okay, so that's why what is this? HD of e raised to jw is desired frequency response. Okay, what is this? Desired frequency response. Okay, तो एच डी ऑफ ई रेस टू जे डब्ल्यू ये रहेगा डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स. ओके, एट एम पॉइंट्स. ओके, ये रहेगा अप टू एम पॉइंट्स, यानी यहाँ पर जो के की वैल्यू यानी जो हम ओमेगा लेने वाले हैं तो ओमेगा जो रहेगा तो ओमेगा विल बी गेट सैंपल्ड. ओके, तो यहाँ ओमेगा जो रहेगा तो हम इसको यहाँ पर सैंपल आउट करने वाले हैं. सो दैट्स व्हाई ओमेगा विल बी सैंपल्ड एट के रेट. So that's why k value will be varying from 0, 1 up to m minus 1.
Okay, it is uniformly spaced around a unit circle. Okay, it is uniformly space around around the unit circle. Getting my point? Okay, so remember, here we are doing this process. Okay, so that's why here hd of e raised to jw is the desired frequency response. This desired frequency response is sampled. So remember, अगर मैं यहाँ पर एच डी ऑफ ई रेस टू जे डब्ल्यू अगर लेता हूँ, सो दैट्स वाई एच डी ऑफ ई रेस टू जे डब्ल्यू अगर लेता हूँ, तो उसमें मैं यहाँ पर सैम्पलिंग कैरी आउट करूंगा. ओके, तो सैम्पलिंग यहाँ पर कैरी आउट करूंगा, तो जो ओमेगा है, तो ओमेगा को मैं यहाँ पर सैम्पलिंग करूंगा, तो उसको कितना सैम्पलिंग करूंगा, तो 2 पाई के बाय एन तक मैं उसको सैम्पलिंग कैरी आउट करूंगा. ओके, तो यहाँ पर एन क्या है, एन आपको यहाँ पर रहेगा, एन रहेगा आपको यहाँ पर द ऑर्डर ऑफ द फिल्टर. ओके, द एन विल बी टेलिंग यू हियर द ऑर्डर ऑफ द फिल्टर. ओके, और यहाँ पर हम k की जो वैल्यू है वह सैम्पलिंग वैल्यू लेंगे, तो k की जो वैल्यू है वह यहाँ रहेगी 0, 1 अप टू m-1, तो हम उसको सैम्पलिंग पॉइंट यहाँ पर कंसीडर करेंगे. सो दैट्स व्हाई हियर वी विल अप्लाई sampling. Once you apply the sampling, what you will get the resultant things, you will get the resultant things as a hd of k. ओके, यानी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपको यहाँ पर मिलेगा. राइट, सो दैट्स व्हाई ये एच डी ऑफ के आपको यहाँ पर रिजल्टेंट में मिलेगा, और उसको मिलने के बाद मैं यहाँ पर उसे आई डी एफ टी, जैसा मैंने यहाँ पर कहा ना, तो यहाँ IDFT of the set of samples of the desired, okay, is IDFT of the set of sample will gives the filter coefficient. Okay, so that's why I will apply here IDFT, and here after applying the IDFT, here I will get a, remember what you know about the after applying the IDFT, do you know the formula of IDFT? Okay, what is that? Okay, I hope you know it. Okay, what you will get IDFT. Okay, I hope h of n is equal to 1 upon n. Okay, summation of k is equal to 0, क्योंकि ये k component है ना, so that's why we will apply here. Okay, ये k अगर component है, so that's why from k is equal to 0 to n-1, यानी फिल्टर कहाँ तक अपने को डिजाइन करना है, n-1 वैल्यू तक. ओके, तो मैं यहाँ पर ये जो है वैल्यू एच डी ऑफ के पास आउट करूंगा. ओके, विथ अ ट्विडल wn रेस टू माइनस के एन. ओके, wn रेस टू के एन, या आपको पता है e रेस टू j 2 पाई n के बाय n. राइट, तो आप वो लो या यहाँ पर ट्विडल लो. ओके, नो प्रॉब्लम. सो दैट्स व्हाई मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर h ऑफ n. राइट, सो क्या क्या हुआ यहाँ पर देखिए, आप क्या ले रहे हो, एच डी ऑफ ई रेस टू जे डब्ल्यू. ओके, एच डी ऑफ जी रेस टू जे डब्ल्यू इज अ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ अ फिल्टर. ओके, हम उसके कोएफिशिएंट यहाँ पर बाय सैम्पलिंग के द्वारा फाइंड आउट करेंगे, तो आपको मिलेगा एच डी ऑफ के. ओके, यानी आपको डीएफटी मिलेगा. ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या कहा, a set of sample is determined from the desired frequency response are identified as discrete Fourier transform coefficient. Okay, are identified as discrete Fourier transform coefficient, then IDFT of the set of sample will gives the filter coefficients. Okay, I hope you got it. ओके, मैंने यहाँ पर उसे मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ उसे कहा. ओके, तो एच डी ऑफ e raised to jw is a desired frequency response. Okay, and from this after applying the sampling you will get hd of k. Okay, so that's why you will get the desired filter coefficient, and after
that you are going to apply the IDFT. After applying this IDFT, okay, you will get the set of sample of the filter coefficient, that is h of n. ओके, तो ये 3 स्टेजेस से हमको जाना है. गेटिंग माई पॉइंट. तो ये 3 स्टेजेस से आपको जाना है. आप लिख रहे हो? आई होप आप अच्छी तरह वॉच आउट कर रहे हो. ओके, आपको अच्छी तरह दिख रहा है मेरे वीडियो को. फुल स्क्रीन में अगर देखोगे, ओके, तो उसे ऑब्जर्वेबल रहेगा. राइट? हाँ, अभी ये आइडिया आ गया आपको कि यहाँ पर ये 3 स्टेजेस में है. ओके, फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग मेथड आपको 3 स्टेजेस में आपको अवेलेबल रहेगा. ओके, तो अभी टाइप कौन कौन से आते हैं फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग मेथड में? ओके, सी, अगर आप यहाँ फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग मेथड एडॉप्ट कर रहे हो, ओके, देयर आर टू टाइप्स. ओके, पहला आता है टाइप 1 मेथड और सेकंड आता है टाइप 2 मेथड. ओके, तो टाइप 1 और टाइप 2 ये फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग मेथड्स हैं. ओके, लिखते जाओ हाँ, आपके साथ साथ, मेरे साथ साथ. ओके, तो ये याद रखो कि अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है. टाइप 1 अगर आप यूज करते हो तो इसमें इंक्लूजन रहता है. ओके, इंक्लूजन ऑफ ओमेगा. ओके, तो ओमेगा की जो वैल्यू है वह यहाँ 0 लिया जाता है. ओके, और 0 लेके हम इसे यहाँ फाइंड करते हैं एच डी ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा टू एच डी ऑफ के टू एच ऑफ एन. ओके, अभी ये टाइप 1 के बारे में हो गया. सिमिलरली टाइप 2 में रहता है इंक्लूजन ऑफ ओमेगा when ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, तो ये डिफरेंस यहां इन दोनों मेथड्स में है. यानी टाइप 1 में लोगे तो टाइप 1 में इंक्लूजन रहेगा ओमेगा का, ओमेगा इज इक्वल टू 0, और टाइप 2 मेथड में इंक्लूजन रहेगा ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 0. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई यहाँ दोनों में से कौन सी मेथड जनरली अडॉप्ट की जाती है. ओके, फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग मेथड में जब आप यहाँ एफआर फिल्टर डिजाइन करने जाओगे तो डिजाइन करते समय आपको यहाँ कौन सी मेथड इन दोनों में से अडॉप्ट की जाती है. तो जनरली जो टाइप 1 मेथड है, ये टाइप 1 मेथड जनरली अडॉप्ट की जाती है अक्सर. ओके, तो ये मेथड के द्वारा हम अभी थियोरेटिकली देखते हैं कि ये मेथड कैसे आप इंप्लीमेंट कर पाओगे. ओके, सो दैट्स व्हाई वी गो फॉर टाइप 1 मेथड. ओके, तो इसका थियोरेटिकली क्या कॉन्सेप्ट है डिजाइनिंग का, तो ये हम अभी लर्न करते हैं. तो टाइप 1 मेथड है क्या? राइट, सी, अभी टाइप 1 मेथड में आपको स्टेप 1 आएगा. ओके, स्टेप 1 क्यों आएगा? मैंने क्या कहा, एच डी ऑफ ई रेस टू जे डब्ल्यू है. सो दैट्स वाई हम यहाँ एच डी ऑफ ई रेस टू जे डब्ल्यू यानी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द फिल्टर लेंगे. ओके, वी फर्स्ट सैंपल okay that omega at 2 pi k by
n. Okay, so that's why sampling is carried out at 2 pi k by n से. Okay, so that's why यहाँ ये सैम्पलिंग कैरी आउट की जाएगी. बेटा हाँ. ओके, तो सैम्पलिंग वी डू फर्स्ट सैम्पलिंग एट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई के बाय एन. अभी यहाँ पर k की जो वैल्यू है वो k की वैल्यू यहाँ पर क्या लेंगे, तो k की वैल्यू यहाँ पर लेंगे हम यहाँ पर 0 1 2 अप टू कहाँ तक लेंगे, वो रहेगी अप टू n माइनस 1 तक वो वैल्यू रहेगा. ओके, n क्या है यहाँ पर, n इज द ऑर्डर ऑफ फिल्टर है. ओके, n इज व्हाट, n इज द ऑर्डर ऑफ द फिल्टर. लिखते जाओ. सो हियर n इज द ऑर्डर ऑफ द फिल्टर. ओके, सो हियर इफ यू वांट टू डिजाइन द सेवंथ ऑर्डर फिल्टर, इन केस मैंने अभी तक 7 या 11 केस 11th ऑर्डर फिल्टर हमने एफआईआर फिल्टर में देखे ना. सो अगर मैं यहाँ पर अज्यूम करता हूं कि मुझे 7th ऑर्डर ऑफ फिल्टर डिजाइन करना है. ओके, आई वांट टू डिजाइन 7th ऑर्डर ऑफ फिल्टर डिजाइन. ओके, सो in that situation I will say n is equal to 7. Okay, I say here n value is nothing but it is 7. Okay, तो n की वैल्यू अगर 7 लूंगा तो यहाँ n को 7 के साथ यहाँ पर लेता हूं. सो दैट्स व्हाई नाउ वी गो फॉर स्टेप सेकंड. ओके, सो दैट्स व्हाई स्टेप सेकंड मैं यहाँ पर ले रहा हूं. यहाँ पर हम एच डी ऑफ के रिजल्टेंट में मिल रहा है. कब, एच डी ऑफ ई रेस टू जे डब्ल्यू को सैंपल आउट करेंगे और सैंपल करेंगे तो मैं यहाँ पर उसको सैंपलिंग वैल्यू दे रहा हूं 2 पाई के बाय एन. गॉट इट. ओके, सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ उसे सैंपल आउट कर रहा हूं. सो दैट्स व्हाई स्टेप 2 क्या है मेरी, एच डी ऑफ के इज इक्वल टू एच डी ऑफ ई रेस टू जे डब्ल्यू. ओके, व्हेन इट इज सैंपल्ड एट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई के बाय एन. ओके, सो दैट्स व्हाई हियर we do sampling the omega. Okay, here we do sampling the omega in hd of e raised to jw. Okay, to obtain hd of k. Okay, so here we do sampling the omega in hd of e raised to jw to obtain hd of k. Okay, got it. After applying, क्या अप्लाई करना है आपको, आपको ये डीएफटी मिल गया. अगर ये डीएफटी है तो अपने को क्या मिलना चाहिए, उसका h ऑफ n. सो दैट्स व्हाई h ऑफ n मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आईडीएफटी अप्लाई करना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई आफ्टर अप्लाइंग आईडीएफटी ऑन एच डी ऑफ के. ओके, सो आपको क्या मिलेगा, वी गेट h ऑफ n. आपको क्या मिलेगा, h ऑफ n मिलने वाला है रिजल्टेंट में. राइट, गेटिंग एवरीवन. सो दैट्स व्हाई आपको h ऑफ n रिजल्टेंट में मिलेगा. ओके, सो दैट्स व्हाई h ऑफ n की क्या वैल्यू रहेगी, h ऑफ n की वैल्यू आपको मैंने लिख के दी है 1 अपॉन n समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 एच डी ऑफ k ट्विडल wn रेस टू माइनस k n. ओके,
सो ये रहेगा एच ऑफ एन इज इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 0 टू n-1 एच डी ऑफ के ट्विडल डब्ल्यू एन रेस टू माइनस के एन। ये रहेगा आपका ट्विडल, और ये ट्विडल के साथ आप यहाँ पर यह वैल्यू n की जो लोगे तो वो वैल्यू वेरी होगी 0, 1 अप टू n-1। n की वैल्यू हमने क्या ली है? n की वैल्यू हमने यहाँ पर n इज इक्वल टू 7 लिया है। सो दैट्स वाई अगर हमने यहाँ 7 लिया है तो हम इसे यहाँ पर पुट आउट करेंगे। ओके, सो दैट्स वाई आपको वो उतना वैल्यू रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगा। ओके, कैसे मिलेगा? सी। ओके, सो मैं यहाँ पर रियल वैल्यू ऑफ h ऑफ n फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। गॉट इट? मैं यहाँ पर h ऑफ n की रियल वैल्यू यानी यहाँ पर हम इसको यहाँ फाइंड आउट करने जा रहे हैं। सो दैट्स वाई यह रियल वैल्यू आपको कैसे मिलेगा? सी। ओके, तो हियर आई एम राइटिंग ओके फॉर obtaining real value of h of n, okay, for obtaining the real value of h of n, okay, तो अगर आपको रियल वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो मैं यहां पर दे रहा हूं h ऑफ n इज इक्वल टू 1/n इन ब्रैकेट, मैं उसको अगर डिड्यूस किया तो ओके h ऑफ 0 प्लस टॉइस समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 टू अप टू n-1/2। क्या फार्मूला है? h of n is equal to 1/n in bracket h of 0 plus 2 into summation of k is equal to 1 to n-1/2। हम यहाँ पर रियल वैल्यू लेंगे, so that's why real value of h of k e raised to j 2 pi n के बाय n, ट्विडल को यहाँ पर पुट आउट कर दिया, और ट्विडल को पुट आउट करने के बाद मुझे यहाँ पर वैल्यू मिलेगी ये। ओके, मेरा करली ब्रेस यहाँ पर एंड करता हूँ। ओके, सो यहाँ पर आपको जो n है तो ये n यहाँ पर ऑड रहेगा, ये n की जो वैल्यू है ये आपकी यहाँ पर ऑड रहेगी। ओके, सो दैट्स व्हाई हियर आपको रियल वैल्यू ऑफ h ऑफ n मिलेगा। ओके, तो ध्यान में लो यहाँ पर ये रियल वैल्यू ऑफ h ऑफ n मिली, लेकिन वेन कब कब मिला? वेन n इज इक्वल टू 7 अगर है तो। नाउ कंसिडर, अगर मैं यहाँ पर n की 7 किया तो n की ऑड की वैल्यू यानी रियल वैल्यू मिली। नाउ कंसिडर n इज इक्वल टू 5। हाँ, नाउ कंसिडर n इज इक्वल टू 7। ओके, तो अब हम यहाँ पर h ऑफ n फाइंड आउट करने जाते हैं। ओके, तो h ऑफ n हम यहाँ पर फाइंड करने के लिए n की वैल्यू पुट आउट करते हैं। इट इज 1/7 करली ब्रेस h ऑफ 0 प्लस 2 समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1। अभी n-1 है तो n की वैल्यू पुट आउट करोगे 7 - 1 6/2 यानी 3, राइट? आर ई इन ब्रैकेट h ऑफ k e रेज़ टू j 2 pi n k by 7, right? Curly brace complete. Got? So here n is odd, right? तो आपको यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ ऑड मिल रहा है, राइट? नाउ अब इवन के लिए जाते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई इवन के लिए देखते हैं। हाँ, सी इवन अगर नंबर है तो इवन नंबर के लिए हम फार्मूला लेते हैं। ओके, तो क्या फार्मूला रहेगा h ऑफ n के लिए? तो हम उसको यहाँ आपको डायरेक्ट ले रहे हैं। h ऑफ n इज इक्वल टू 1/n करली ब्रेस h ऑफ 0 प्लस
twice summation of k is equal to 1 to, अभी यहाँ पर m/2 - 1 है, ये छोटा माइनर डिफरेंस यहाँ पर आएगा आपको, m/2 - 1, राइट। ओके, बाकी एज इट इज रहेगा, आर ई इन ब्रैकेट h ऑफ k e रेस टू j 2 pi n k by n, राइट। ओके, ये curly brace. Okay, here we going for n is equal to even. Okay, तो n की वैल्यू यहाँ पर इवन है, इसलिए हम यहाँ पर जा रहे हैं. सो लेट, ओके, n is equal to 4. Okay, 4 is an even number, so we put it here. So h of n is equal to 1/4. Okay, h of 0 plus twice summation of k is equal to 1. अभी m/2 है, तो यहाँ पर 4/2 2, 2 - 1 1, राइट। तो वो वैल्यू यहाँ पर 1 रहेगी। ओके, बाकी रेस्ट थिंग एज इट इज, रियल ऑफ h ऑफ k e रेस टू j 2 pi n k by n। ओके, ये कर्ली ब्रेस। आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर? ये एक्सप्रेशन मिल रहा है इवन के लिए। ओके, तो याद रखिए, ये इवन के लिए आपका यहाँ ये एक्सप्रेशन रहेगा। तो देखो, आपने यहाँ पर इस तरह ये फाइंडिंग्स किए। ओके, तो अभी ध्यान में लो, ओके। So now we go for summarizations, all these things. Okay, what we do, what we have to do. Okay, here we are going to take the desired frequency response of the filter. So for finding h of n, we need to go for 3 basic steps. Okay, so here first step is take hd of e raised to jw. Okay, as you take hd of e raised to jw, you have to apply sampling method. So when you apply the sampling will be on omega. So what is the value of omega? Omega is equal to 2 pi k by n. Okay, when you apply sampling here, the k value is varying from 0 to n minus 1, and the value of n will be telling you here the order of filter. So after solving this, you will get a DFT, that is h of k. Once you got h of k, now you have to apply a inverse discrete Fourier transform. So you will get the original sequence, that is h of n. So h of n value I already given you, so that's why for even as well as odd, okay, that value are given. ओके, सो ये इस तरह आप डिजाइनिंग कैरी आउट कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? आएगा समझ में? सो ये रहा टाइप 1 फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग मेथड। ओके, तो ये इसका ये इस तरह का डेरिवेशन रहेगा। तो याद रखो, हम अभी प्रॉब्लम्स के लिए जाते हैं, राइट? चलो एक प्रॉब्लम लेते हैं फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग टेक्निक्स के ऊपर। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट लिखो, लो पास फिल्टर हैज द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज एज गिवन बिलो। ओके, एच डी ऑफ ई रेस टू जे डब्ल्यू इज इक्वल टू, 2 पॉइंट में दिया है, e रेस टू माइनस जे 3 ओमेगा
उसका लिमिट दिया है 0 लेस देन और इक्वल टू ओमेगा लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 2, और 0 रहेगा कब? पाई बाय 2 लेस देन ओमेगा लेस देन पाई। आपको कहा है डिटरमाइन द फिल्टर कोएफिशिएंट h ऑफ n फॉर m इज इक्वल टू 7 यूजिंग टाइप 1 फ्रीक्वेंसी सैम्पलिंग टेक्निक। हमने टाइप 1 का जो अल्गोरिथम अभी देखा ना, तो टाइप 1 टेक्निक्स के द्वारा अपने को सॉल्व करना है। ओके, गेटिंग दिस नाउ? ओके, नाउ write one by one that I am saying you. Given, okay, what is the given things? hd of e raised to jw, okay, is e raised to minus j 3 omega और 0, ओके, लिमिट दिया है 0 लेस देन और इक्वल टू ओमेगा लेस देन पाई बाय 2 और पाई बाय 2 लेस देन ओमेगा लेस देन और इक्वल टू पाई। ओके, so here while determining you have to concentrate over uh, omega. Okay, what the omega is given to you? Okay, so you know the omega is given like this. Okay, let omega k is equal to 2 pi k by m. Okay, let omega is equal to 2 pi k by m. ओके, या आप ओमेगा के भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम देयर इज। ओके, सो हियर m इज गिवन 7, सो दैट्स व्हाई मैं क्या करता हूं अभी, k की वैल्यू यहां पर अप टू n माइनस m माइनस 1 या n माइनस 1 यहां पर लेता हूं, तो क्या आएगा मुझे? ओके, वो आएगा k इज इक्वल टू 0 टू m माइनस 1, तो उसकी वैल्यू आएगी k इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू 6। इस तरह वो मुझे मिलेगा। अभी मैं क्या करता हूं, k की वैल्यू यहाँ फॉर्मूले में पुट आउट करता हूं 0 1 2, और उसकी वैल्यू यहाँ पर ओमेगा की कैलकुलेट करते हैं। ओके, व्हेन k इज इक्वल टू 0, 0 अगर रहेगा तो वैल्यू क्या आएगा, ओमेगा 0 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 0 बाय 7 इज इक्वल टू 0। गॉट इट? कोई डाउट? ओके, नाउ omega 1, find omega 1. Omega 1 is, okay, put the value of k is 1, so 2 pi into 1 by 7 आपको मिलेगा यहाँ 2 pi by 7, right? Now similarly omega 2 लो, omega 2 रहेगा 2 pi into 2 by 7, okay, is equal to 4 pi by 7। ओके, अभी यहाँ इसकी जो लिमिट है वो लिमिट देखो, पहला ओमेगा 0 था, उसका वैल्यू था 0, यानी इट इज लाइज बिटवीन 0 टू पाई बाय 2। ओके, सिमिलरली 2 by 7 again it is lies between 0 to pi by 2। okay, so that's why I written here it is less than pi by 2। but when you talk about the omega 2, that time here its value is 4 by 7। now if it is 4 by 7 means 4 divided by 7, its ratio will be goes the greater than pi by 2। so that's why here the the value of omega will be a cyclic। okay, so that's why because of that here it will repeat after a cycle। okay, so that's why keep it in mind, here we are going to take all these value in a graph। okay, now we go for calculating omega 3। ओमेगा 3 के लिए कैलकुलेट करो। ओके, 2 पाई इंटू 3 बाय 7 आपको मिलेगा 6 पाई बाय 7। सिमिलरली W4 ओमेगा 4 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 4 बाय 7 आपको मिलेगा 8 पाई बाय 7। W5 2 पाई इंटू 5 बाय 7 वो मिलेगा 10 पाई बाय 7। एंड लास्ट वैल्यू आपको आएगी W6 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 6 बाय 7 इज इक्वल टू 10 पाई बाय 7। अभी आपके पास सारी वैल्यूज हैं। ओके, आपने सभी वैल्यूज यहाँ पर कैलकुलेट भी की हैं। ओके, ओमेगा 0, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओके, सिमिलरली ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5 और ओमेगा 6। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसे ग्राफ में पुट आउट करता हूँ। ओके, हो गया आपका लिख के?
हाँ, जिनका नहीं हुआ है वो लिखिए। ओके, अगर जिनका ये रह गया तो ये लिखिए। ओके, क्या क्या लिखा, क्या क्या किया? लेट ओमेगा के इज इक्वल टू 2 पाई k/m, m की वैल्यू लिया 7, के की वैल्यू पुट आउट किया 0 से लेकर अप टू m-1 यानी 0 से लेकर 6। के की वैल्यू पुट आउट करो इस फॉर्मूले में। ओके, सभी वैल्यू पुट आउट करोगे। ओके, वंस यू पुट इट यू विल गेट सम वैल्यू दैट विल बी 0, 2 पाई/7, 4 पाई/7। ओके, इस तरह ये वैल्यू मिली। ओके, उसी तरह आपको नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी W3। ओके, 6 पाई/7, 4 8 पाई/7, W5 मिलेगा 10 पाई/7, और आपको मिलेगा W6 यहाँ पर 12 पाई/7। ओके, अभी ये वैल्यूज हम यहाँ इस ग्राफ में लेते हैं। आई होप यू हैव रिटन ऑल दिस थिंग्स। ओके, दोज हु हैव नॉट रिटन दे पॉज द वीडियो एंड राइट इट, राइट? Now we are going to plot a graph. Okay, here on x-axis there is a W, okay, and omega, and on y-axis there is a hd of e raised to jw. Okay, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे लिमिट दिया है 0 to π/2। तो 0 to π/2 में क्या लिमिट दिया, लिमिट की वैल्यू है e raised to -j3 ओमेगा, और दूसरा वैल्यू दिया है π/2 to π। ओके, इसकी वैल्यू क्या है 0। अभी अगर मैं यहाँ पर साइक्लिक प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर उसे देखता हूँ, ट्विडल के हिसाब से अगर देखता हूँ, तो ये रिपीटेटिव सीक्वेंस होगा ना। सो दैट्स वाई ये अगर यहाँ पर इस तरह रिपीट हो रहा है तो ये π/2 तक रिपीट हो रहा है, तो मैंने -π/2 तक यहाँ पर रिपीट होगा 101%। ओके, तो इस तरह ये रिपीटेटिव साइकिल रहेगी, और रिपीटेटिव साइकिल में -π/2 to π/2 ये सिग्नल प्रेजेंट रहेगा। लेकिन आगे अगर π/2 to π अगर लेते हो तो ये सिग्नल absent है, तो इसकी वैल्यू है 0। ओके, तो ये पूरा यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये कॉर्नर से ये कॉर्नर तक यहाँ पर π/2 to 0 यानी -π/2 to 0 या 0 to π/2 आ गया। तो उसी तरह यहाँ पर π/2 to π और π से लेकर 3 π/2 यानी इट विल बी द सेंटर बिटवीन द π एंड 2π। ओके, सो दैट्स वाई आपको मिलेगा 3 π/2। ओके, तो ये 3 π/2 तक यहाँ पर वो 101% 0 रहेगा, बट एट 3 π/2 इट विल बिकम्स e raised to -j3 ओमेगा, एंड इट विल बी रन्स लॉन्गर 5 π/2। ओके, बात समझ में आ गई? बिकॉज ऑफ द साइक्लिक प्रॉपर्टी द सिग्नल इज रिपीटेटिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट we will consider here all the values. Okay, if you consider all the values, see what I am giving, hd of k, we are going to find out the dft. So that's why hd of k is equal to hd of e raised to jw at omega k is equal to 2 π/m into k. Okay, getting this point? तो अब हम यहाँ पर ये एच डी ऑफ के यहाँ पर लिया है, तो यहाँ ये डब्ल्यू के यहाँ पर अगर पुट आउट करोगे तो आपको कौन सी वैल्यूज के लिए यहाँ पर एच डी ऑफ के प्रेजेंट होता है? सी, एच डी ऑफ के आपको यहाँ पर प्रेजेंट हुआ है के इज इक्वल टू 0 और 1 के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसकी वैल्यू वैलिड है, तो वो आ गई है यहाँ पर e raised to -j6 π/7। ओके, और अगर आप यहाँ पर अगर 2 3 4 5 के लिए जाओगे तो 2 3 4 5 के लिए इसकी वैल्यू यहाँ पर रहेगी 0। ओके, तो ये वैल्यू यहाँ पर 0 रहेगी, तो बिकॉज ऑफ दैट द सिग्नल इज एब्सेंट, बिकॉज यहाँ पर वो π/2 से लेकर 3 π/2 में वो लाई कर रही है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ W3 की अगर वैल्यू लेते हो तो वो है 6 π/7, तो ये 6 π/7 यहाँ पर लाई कर रही है यहाँ इस पर्टिकुलर π/6 और 3 π/2 में। ओके, या W4 है तो वो 8 π/7 है, वो लाई कर रही है यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर। W5 है यहाँ पर 10 π/7, वो यहाँ पर लाई कर रहा है, और ये W6 है वो 12 π/7, वो यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाई कर रहा है, यानी वो इस पर्टिकुलर सिग्नल में वो प्रेजेंट रहेगा। ओके, तो इस वजह से हमने यहाँ उसे मार्क किया है कि भाई when k is equal to 6 it will be present e raised to -j6 π/k/7। got it? okay, getting everyone? तो ये समझ में आया, एच डी ऑफ के e raised to -j into 6 π/k/7
या 0 या e रेस टू माइनस जे। तो कौन सी वैल्यूज के लिए, k की वैल्यूज के लिए कहाँ सिग्नल प्रेजेंट है? तो देखिए k इज इक्वल टू 0 और 1 के लिए सिग्नल प्रेजेंट है, और k इज इक्वल टू 6 के लिए सिग्नल प्रेजेंट है, बाकी अदर्स के लिए सिग्नल 0 है। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट भाई किसी को? ओके अभी हम फिल्टर का कोइफिशिएंट यहाँ जो है वो एच डी ऑफ एन यहाँ हम आई डी एफ टी के द्वारा फाइंड आउट करने जाते हैं। सो दैट्स वाई फार्मूला इज एच डी ऑफ एन इज इक्वल टू 1/m summation of k is equal to 0 to m minus 1 hd of k e raised to j 2 pi n k by m। ओके ये फार्मूला हमने हमारे theoretical पॉइंट में भी देखा था, राइट? नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ m, इट इज 1/7, k इज इक्वल टू 0 to 6 यानी 7 minus 1 आपको आ जाएगा 6, एच डी ऑफ k आएगा ओके e रेस टू j 2 pi n k by 7। ओके चलिए आगे, आगे आपको यहाँ पर है 1/7। अभी मैं यहाँ पर लिमिट पुट आउट कर रहा हूँ। देखिए अगर आप एच डी ऑफ के की वैल्यू के लिए लिख देखते हो तो k इज इक्वल टू 0 to 6 में सिर्फ 0 और 1 के लिए प्रेजेंट है। ओके तो 0 और 1 और 6 के लिए प्रेजेंट है, तो दैट्स वाई बाकी के लिए वो ऑब्सेंट है। सो दैट्स वाई मैं वो ऑब्सेंट जहाँ पर है वो ऑब्सेंट यहाँ पर मार्क नहीं कर रहा हूँ। सो दैट्स वाई k इज इक्वल टू 0 to 1 ओके e रेस टू माइनस जे 6 पाई के बाय 7 और e रेस टू जे 2 पाई के n बाय 7। ओके और आखिरी में जहां 6 है तो वो 6 के लिए यहाँ पर लिख रहा हूं प्लस e रेस टू माइनस जे 6 पाई के बाय 7 इंटू e रेस टू जे 2 पाई के n के बाय 7 ओके व्हेन k इज इक्वल टू 6। ओके ये इसके लिए स्पेसिफिकली यहाँ पर लिखा है, इट इज फॉर k इज इक्वल टू 6। ओके कोई डाउट? हाँ जिनको लिखना है वो लिखिए फटाफट फटाफट फटाफट। ओके यहाँ तक आ रहा हूँ तो यहाँ लिखिए, 2 मिनट देता हूँ। चलो हो गया। हाँ चलो अभी अभी सॉल्व करते हैं। हाँ अभी देखो 1/7 ओके समेशन k इज इक्वल टू 0 to 1। अभी ये जो है ये जो एक्सपोनेंट है ये एक्सपोनेंट यहाँ पर मैंने ऐड कर लिए। ओके तो आपको रिजल्टेंट मिलेगा e रेस टू जे 2 पाई के इंटू ब्रैकेट n माइनस 3 इंटू 7 प्लस आखिरी में यहाँ पर ये फिर से दो एक्सपोनेंट है, ये दोनों एक्सपोनेंट यहाँ पर ऐड कर लिए e रेस टू जे 12 पाई इन ब्रैकेट n माइनस 3 इंटू 7। गेटिंग दिस स्टेप? कोई डाउट भाई किसी को? लिखो प्रॉपर। लिख लिए ये स्टेप्स? अभी यहाँ देखते हैं ये स्टेप। ओके 1/7 इन ब्रैकेट ओके लिमिट में यहाँ पर जो समेशन टर्म है उसको एक्सपांड कर रहा हूँ। सो दैट्स व्हाई व्हेन k इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, 0 अगर रहेगा तो e रेस टू 0 यानी 1 हो जाएगा। ओके प्लस e रेस टू जे 2 पाई इन ब्रैकेट n माइनस 3 बाय 7। ओके क्योंकि ये 1 है, k की वैल्यू 1 है इसलिए मैंने यहाँ पर k की वैल्यू 1 पुट आउट कर दी। और यहाँ पर e रेस टू जे 12 पाई इन ब्रैकेट n माइनस 3 बाय 7। ओके कोई डाउट? नो now here we are going to take the recycling property, so that's why because of that recycling property here okay we have e raised to j 12 pi in bracket n minus 3 by 7 okay it is directly proportional to here e raised to j e raised to minus j 2 pi in bracket n minus 3 by 7 okay तो इसका exactly ये theme same आएगा। okay getting this step? okay so that's why after these steps I am going to replace this e raised to j
12 पाई। ओके, तो ये यहाँ पर पुट आउट कर रहा हूँ। सी एच डी ऑफ एन इज इक्वल टू 1/7 इन ब्रैकेट 1 प्लस ई रेस टू जे 2 पाई इन ब्रैकेट n माइनस 3/7 प्लस ई रेस टू माइनस जे 2 पाई इन ब्रैकेट n माइनस 3/7। ओके, अभी ये एक्सपोनेंट यहाँ पर अगर आप लेते हो तो ये एक्सपोनेंट देखिए, दो एक्सपोनेंट टर्म्स है, ये प्लस है माइनस है, तो इसको डायरेक्टली आप यहाँ पर एज अ कोसाइन टर्म में रिप्लेस कर सकते हो। सो दैट्स वाई मैंने कोसाइन टर्म में रिप्लेस किया है, और वो कोसाइन टर्म में रिप्लेस करने के बाद मुझे यहाँ पर फाइनल आंसर मिल रहा है एच डी ऑफ एन इज इक्वल टू 0.1429। ओके, 0.1429 प्लस 0.2857 कॉस in bracket 0.898 in bracket n minus 3, right? So this answer I got as a final answer. Okay, I hope you will understand. लिख लो सभी। अच्छा, कोई डाउट रहेगा भाई किसी को? ओके, so I hope everyone got this. So thank you very much for this time. Okay, see, मिलते हैं।